Morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good Good morning, morning, sir. sir. morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। बेटा कल जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो बताओ जरा। Sir, Mohi started walking towards south. After walking 15 meter, he turned left and walked 5 meter. Again, he turned left and walked 10 meter. Which direction is toward his right now? ओके, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। या रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Mayank is standing facing south. Sir, what? Mayank is standing facing south. Full stop. I think मुझे screen share करनी चाहिए. Otherwise, you will take a lot of time to note down. Also, all the students are not there. I'm going to share my screen. Only 12, sir. Yes, I'm sharing the screen. Okay, just a minute. Yes, note down the question, all of you. It is there on your screen. And give your answers in the chat box.
Sir, we have to give answer in the chat box. Yes. Sir, we have already done this question. नहीं बेटा. Sir, last time you did this orally. मैंने दिया था ऐसा क्वेश्चन. Yes, sir. सर इससे रिलेटेड था लेकिन ये नहीं था. Related, Yes, but sir. it not was this. It is a little different. Do it. Yes. Give your answer quickly. Just 1 more minute to give the answer and take the screenshot. Sir, done. Okay. Sir, done. Okay. So let's discuss this. Mayank is standing facing south. So essay questions में you first draw all the directions. It becomes a little easy. वैसे भी easy है. So he's standing facing south. He takes a turn of 90 degrees clockwise. अभी south की तरफ face कर रहा है. Clockwise क्या होता है? This is clockwise. Okay. So he turns 90 degrees clockwise. यानी कि ये वाली direction में 90 degree का turn लिया. 90 degree turn करेगा तो कहाँ face करेगा? अब किधर हो जाएगा? West. Facing west. Okay. तो पहले south था west हो गया. Then he takes a 180 degree turn anti-clockwise. उसके बाद 180 degree anti-clockwise चला गया, यानी कि like this anti-clockwise. East. तो अब कहाँ face कर रहा है? East. East. हाँ. So finally he turns 45 degrees clockwise. अब उसके बाद 45 degree. 45 degree का मतलब क्या होता है? Sir, somewhere 45 in the middle of Half of south and 90. east. 45 is equal to half of 90. Am I right? तो 90 ये Yes, पूरा हो जाएगा, clockwise 90 पूरा हो जाएगा, but 45 का मतलब क्या हुआ? Half. Southeast. Yeah. So finally he is facing this direction. This Southeast. is southeast. So answer is southeast. Is it clear, all of you? No, Yes. sir, please explain again. अरे कहाँ तक समझ में आ Yes, गई? sir. Sir, वो starting का sir जो clockwise आपने step Sir, लिया था sir, after clockwise. अच्छा starting से बता रहा the हूँ. starting step. एकदम starting से बिल्कुल. First he is facing south. South के बाद he turned clockwise. Clockwise क्या होता है? Clock की hands कहाँ जाते हैं? इस direction में घूमते हैं. Like this. Okay. तो clockwise ये हुआ. Clock के hands ऐसे तो move करते हैं. तो साउथ में था, clockwise जाएगा, यानी कि 90 डिग्री clockwise गया, तो कहाँ फेस करेगा? वेस्ट में. ओके, ही इज फेसिंग वेस्ट. तो उसके बाद 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. तो ये एरो मैंने बनाया 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. 180 मतलब एग्जैक्ट अपोजिट. तो 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज मूव करो या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, बात वही है. सो ही टर्न्ड 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे करके 180 डिग्री का टर्न ले लिया उसने. So he is now facing east. अब ईस्ट में फेस है उसका. Finally
he turns 45 degrees clockwise. फिर 45 डिग्री यहाँ से 45 डिग्री कहाँ टर्न हुआ क्लॉकवाइज, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री है। 45 क्या होता है हाफ ऑफ 90, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न होकर कहाँ फेस करेगा साउथ ईस्ट। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. तो साउथ Yes, ईस्ट sir. So Ved has given correct answer and Aditya Mishra has given correct. Mishra ji, Alind correct. Utkarsh correct. Sorry, Utkarsh का गलत। सर वही मैं सोचा मेरा गलत है। Navya correct. Aditya Kumar correct. Okay. Next question. Last question of this topic. इसके बाद ranking से start करेंगे. Okay. Ranking is also a very good topic. Yeah, this is the question. Start doing it. I'm giving you only 3 minutes to do the question. Question करके कॉपी में नोट करने के लिए 3 minutes.
Okay, done. Done. Yes, sir. sir. Done. Okay. Facing north, Aishwarya turns 45 degrees clockwise, then turns 135 degrees anti-clockwise, and then 180 degrees clockwise. So answer is east, I think. Yes, East sir. is- Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आइए चेक कर लेते हैं एक बार. मैंने ऐसे ही देखा है अभी. My answer is east. सही से Sir, करा. my answer is also east. Sir, my also. इतने सारे लोगों का आंसर ईस्ट है तो ये होगा. चलिए, so Aishwarya is facing north and turns 45 डिग्री. पहले नॉर्थ में फेस था ऐश्वर्या का. उसके बाद she took a turn of 45 degrees clockwise. Clockwise direction ये हो गई, ठीक है. So 45 डिग्री टर्न किया, that means right now उसके मतलब 45 के बाद उसका फेस हो जाएगा Northeast. नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है. उसके बाद then after turning 45 degrees clockwise, यानी कि अभी यहाँ पर फेस है उसका नॉर्थ ईस्ट में, then she took a turn of 135 degrees anti clockwise. अब 135 का मीनिंग क्या होता है? 135 Sir, का- equals to 3 times 180 45 minus degrees. 45. 180 Actually, minus you 140. can think like this 3 times 45 या फिर 45 plus 90, ऐसे सोच सकते हैं आप इसको, ठीक है. या तो ऐसे सोचिए 3 times 45 या फिर So, 45 sir, 45 is covered by 45 and 90 degrees covered by 90 degrees. So we go to Yes. west. Yeah. So 45 degrees anti-clockwise, sorry 135 degrees anti-clockwise जाएगा, यानी कि अब उसका फेस हो जाएगा वेस्ट में, ठीक है. So this is 135. कैसे? 45 plus 90 कितना हो गया? 135. So now he is facing, sorry, she is facing west. And finally she turns 180 degree clockwise. और उसके बाद 180 डिग्री का टर्न ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में. कितना हो गया? ईस्ट में फेस हो गया. आंसर इज ईस्ट. सो फाइनली ही इज फेसिंग ईस्ट. एक ही बार में 90 डिग्री घूम जाती क्लॉकवाइज, इतना घूमने की क्या जरूरत थी? पहली बार में 90 डिग्री होना चाहिए था. तो चलिए, कमाल की बात ये है, कमाल की बात बताऊं कि ऑल द आंसर्स आर करेक्ट. सबका आंसर सही है. नाम लूं बच्चों के? Sir, every. Yes. Yes, sir, Everyone take has given name. the correct answer. First time ऐसा हुआ है. All of you have given the correct answer. वेद, मिश्रा जी, आलिंद, भव्या, आदित्य कुमार, अदिति, नव्या, नव्या के बाद विदुषी, सक्षम, उत्कर्ष, रिद्धिमा लांबा. So these are the students who have given the answer. और सबका Sir, but answer. sir, Krishna is also there in meeting. Some of you are there who have not given the answers. बेटा आप लोगों को एब्सेंट लगा दूं जो आंसर्स नहीं दे रहे हैं. सर कृष्णा का तो माइक भी ज्वाइन नहीं करा सर, कनेक्ट भी नहीं हुआ. कनेक्ट हुआ नहीं, करा नहीं है भाई ने, लग रहा है. यस सर. हो सकता है सच में नहीं हुआ हो. यशराज has not given the answer and Pranjal not given the answer. Pranjal beta, why are you not answering? Chaitanya has not given the answer. Sir, I have joined now because I didn't found the link. अरे बेटा तुम्हें लिंक क्यों नहीं मिलता है? लिंक कहाँ खो जाता है तुम्हारा? पता नहीं लिंक मुझे मिलता ही नहीं है. You are there in the Sir, group. Now सर अलग ग्रुप में सर ये क्लास ग्रुप में सर ये मिलता ही नहीं है, बस लिंक ही नहीं मिलता, सारी चैट्स मिल जाती हैं सर. अरे मेरी बात सुनो चैतन्य, आप सारे टीचर्स का लिंक जो है वो सेव करके रख लीजिए अपने पास, ठीक है. आपके घर में 2 फोन है? डू यू हैव 2 phones एट होम? चैतन्य जल्दी बताओ. नहीं पता? बेटा मेरा हर बार सेम लिंक होता है, ऐसी बाकी टीचर्स का भी आई थिंक सेम ही लिंक होता होगा. टीचर्स Yes, का sir, same ही होता है. सेम लिंक होता है. तो आप सेम लिंक को टाइम क्लास की टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसी टाइम पर ओपन करेंगे, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी बस. ओके,
बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो वो सारे लिंक जो है, सारे टीचर्स का लिंक एक एक बार अपने ही घर के किसी फोन में फॉरवर्ड कर दीजिए। सर ये लेफ्ट। Sir, you are saying something? I हेलो, have disconnected. मैं कुछ नहीं बेटा, कल मैं ये कह रहा था, कल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बस ये कह रहा था। Okay, yes. यस सर। नहीं मजाक नहीं, चैतन्य सीरियसली मेरी बात सुनिए। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ऑल द टीचर्स शेयर द सेम लिंक अगेन एंड अगेन। सारे टीचर्स का लिंक जो है, जो शेयर करते हैं वो सेम होता है। सो फॉर एग्जाम्पल आई यूज द सेम लिंक इन एवरी क्लास। तो आप मेरा जो लिंक है उसको अपने घर के किसी और फोन में फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। अब जब मेरी क्लास का टाइम होता है आप उस लिंक को ओपन करेंगे, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली यू कैन डू दिस फॉर अदर टीचर्स ऑल्सो। तो आप टाइम टेबल को देखिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जिस टीचर की क्लास है उसका लिंक पे क्लिक करिए और स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सर you can pin the meetings also in the group in the Zoom. Yes. अब वो तो मुझे नहीं पता, इतना एडवांस नहीं हुआ, जो मतलब मेरी समझ में आया वो, बाकी मुझे पता ही नहीं कि यार ये क्या होता है पिन वगैरह करना। वो तुम लोग इसको बाद में समझा देना, ठीक है, फॉलो करके। खैर एक और अच्छी बात हुई कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इट वाज अ वेरी गुड मैच, Yes, sir. मतलब द होल सीरीज वाज वेरी गुड। सर शुरुआत में तो सर इंडिया से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सर बाद में कुछ ज्यादा ही मजा कर दिया। मिश्रा जी ने पूरा मजा लिया है मैच का, है? नो सर मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखे सर, कौन देखे पूरा। अच्छा। यस सर, हाइलाइट्स में मजा आता है। बस सुबह सर कौन उठेगा मैं इतनी तो जल्दी? अरे सर highlight ही टेस्ट देखता से बोर हो जाते हैं सर, हाइलाइट्स ही देखता हूँ मैं भी। चलिए सर आगे सुबह बढ़ते के 5 बजे से टेस्ट था। हैं। So now let's कौन move forward decide? and let's start with the next topic, which is rankings. Rankings क्या होता है? Let me tell you. Introduce कर दूं, फिर I will share some questions of ranking also. कितना टाइम बचा है मीटिंग में? अच्छा 15 मिनट बचे हैं, बहुत है। Sir, we have one more period today. हाँ एक और पीरियड है, तो कोशिश करेंगे रैंकिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन आज कर दें। आज खत्म करनी है ना रैंकिंग? आज तो मुश्किल है खत्म हो पाना, शायद कल तक खत्म होगा, ट्राई करते हैं। Sir, we did सर 9 जहाँ चाहे questions वहाँ of है। direction. सॉरी, We did 9 questions of ranking. Sir, not ranking, direction. 9 question. ज्यादा करेंगे, 10-11 करेंगे। तो मतलब 9 क्वेश्चंस करने का मतलब ये है दैट मींस वी हैव डन ऑलमोस्ट all the topics, all the variety that is there in directions, almost सब हमने कवर कर लिया है। So that is the main thing. मैं कोशिश करता हूँ कि सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आपको करा दूँ। अब वो उसकी जो प्रैक्टिस है, you can do it from internet, search the questions and do them. Okay. यस सर मैं ऐसे ही करता हूँ सर, प्रैक्टिस के लिए रीजन। वैरायटी में कॉन्सेप्ट सारे Sir, these are the ranking of army. I try to explain all the concepts. तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा कि नोट किया होगा, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या टेस्ट वगैरह जो भी होता है। तो Yes, ऐसा sir. बहुत ही रेयरली होता है कि नया कॉन्सेप्ट कोई आ गया हो, बट ऐसा भी हो सकता है। लेट मी टेल यू, इट इज पॉसिबल कि कोई नए कॉन्सेप्ट या नया मतलब वैरायटी थोड़ी सी चेंज हो जाए, हल्का सा चेंज हो सकता है, तो वो होना भी चाहिए। सर हम UT3 सर ऑनलाइन भी दे सकते हैं। सॉरी क्या हुआ सर हम UT3 Yes, sir, हम please ऑनलाइन भी tell. दे सकते हैं। बेटा ये मुझे नहीं पता, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। स्कूल में अचानक से कुछ भी पॉलिसीज चेंज हो Sir, जाती कल मैसेज आया था। हैं। मुझे तो जितना समझ में आप नहीं आया क्या है मैसेज। यस जितना आप लोगों को सर पता उस है, पूरा मैसेज तो था, सर जिन्हें ऑनलाइन देना है वो ऑनलाइन दे सकते हैं और जिन्हें स्कूल में आके देना उन्हें फॉर्म जमा करना है। जितना यस आप सर, उन्हें फॉर्म क्लास टीचर को सेंड करना है। हाँ, तो जितना आप लोगों को पता है उतना ही मुझे पता है। मैंने भी कल ग्रुप में मैसेज पढ़ा तभी मुझे पता चला। मैंने आप लोगों को पहले बताया, मैं स्कूल में बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं होता है, ठीक है। मुझे किसी पहले और से पता करना पूछना पड़ेगा पड़ेगा। कि क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि मैं आज पूछ लूँ, देन आई विल बी एबल टू इन्फॉर्म यू टुमारो इन डिटेल, ठीक है। सो ओके सर। ओके सर। क्या कह रहा था मैं? I was saying that yeah, in the reasoning, if there is some new variety of questions,
a new variety of questions comes in the exam, that is also possible हो सकता है, और उसमें भी कोई ऐसा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, बिकॉज रीजनिंग का बस दिमाग लगाना है। रीजनिंग का मीनिंग यही है कि आप अपने दिमाग को खुद कितने, मतलब कोई नई चीज होती है कितना उसको दौड़ा कैसे सकते यूज हो। कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को कितना दौड़ा सकते हैं, कितना चला सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन एल्स, सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली रीजनिंग इज। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस सर सर बाय द वे सर हैप्पी गुरु गोविंद सिंह जयंती। अच्छा, थैंक यू एंड सेम टू यू। सर व्हाई टुडे इज नॉट हॉलीडे? बेटा आई डोंट नो, अगेन वही बात है, घूम फिर के वही बता दी, आई डोंट नो। चलिए, रैंकिंग्स, रैंकिंग इन द इज द टॉपिक। अब इसमें आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। सपोज देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। 15, जल्दी से आंसर देना है। 15 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, एक स्टूडेंट है। सबसे पहले देखते हैं कौन है। यू कैन गिव योर आंसर इन दी चैट बॉक्स, सॉरी नॉट इन द चैट बॉक्स, वॉइस में, वॉइस के थ्रू आप आंसर कर सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मतलब सर माइक। हाँ, you can switch on your mic and give the answer. अनम्यूट। Unmute yourself and give the answer without the help of the chat box. आप आंसर दे सकते हैं। So if there are 15 students in the class, in a class, and suppose your rank is, suppose मान लो बेटा, वैसे बुरा मत मानना, your rank is suppose 10th in the class, from the top your rank is 10th, पीछे से कौन सी रैंक हुई आपकी? टॉप की रैंक 10th है, तो बॉटम सर फिफ्थ। सर फिफ्थ। इसलिए तो तुम्हारी 10th रैंक आ रही है क्लास में। पीछे से देखेंगे तो 6th हुई मेरे बेटा, 10th। 6th। टॉप से 10th है तो पीछे से 6th होगी। सर सर so when we will add them, so ओके there सर, will अंडरस्टूड। oh नहीं sir आई मेरी because बात we सुनो। are also ना। सर आई सेड 6th। हाँ, देखिए कैसे 6th। सबसे पहले 15th पोजीशन पे सर 15 14 13 12 11 and 10, सर 10 will come at the 6th position। 15th पोजीशन पे 10th will come at होगा, 6th ध्यान से देखिए, 15th पे होगा, फिर 14th पे कोई होगा, फिर 13th, 12th पोजीशन, 11th पोजीशन एंड 10th पोजीशन। ये वाली जो पोजीशन है ये है आपकी। काउंट करिए 1 2 3 4 5, पीछे से काउंट कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन आ रही है? 1 2 3 4 5 6। कौन सी सर पोजीशन? 6। 6th। लॉजिक समझ में आया? इतना सा बेसिक सा क्वेश्चन था, तुम बता रहे हो 5th है आंसर, है नहीं ये बात? सर आधे बच्चे सोच रहे होंगे कोई ट्रिक Sir, है, one शायद more 6 नहीं होगा, question, शायद please. 50 होगा। यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नॉट? क्या बता रहा हूं मैं, समझ में आई ये बात? यस Yes सर। sir। Sir, please. Sir. one more Yes sir। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई पूछ रहा है बेटा? जो बच्चे पूछ रहे हैं वो आंसर करें, जिनको समझ में आ गया वो थोड़ा शांत रहे। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस? समझ में आने में कुछ प्रॉब्लम आई? No sir। Sir, can you please give one more question like this? I will give one more question of this. Many questions नो I सर, will नो टिल नाउ। I will give you many questions of the same type. मतलब थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, स्टार्टिंग यही यहाँ से होती है टॉपिक की। That if suppose there are 15 students in the class, your rank from the top is 10th, your या कोई और भी हो सकता है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, his name is X, his position from the top is 10th, then his position from the bottom will be 6th. अब ये 6th कैसे आया? काउंट करिए, 15th 14th 13th 12th 10th 11th and 10th। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 6th पोजीशन हो गई, राइट और नॉट? 6th पोजीशन आ रही है पीछे से। तो ये इसको निकालने का, वैसे तो इफ देयर आर इन दिस केस देयर आर ओनली 15 स्टूडेंट्स, अगर बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में तो फिर क्या तरीका होना चाहिए निकालने का? इसका तरीका क्या है? आप 15 में से 10 माइनस करिए और 1 ऐड कर लीजिए, तो पीछे से आपको रैंक पता चल जाएगी। टॉप से क्या रैंक? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 है, टॉप से क्या रैंक है? 10th है, और 1 ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6। क्लियर और नॉट? क्लियर। Yes sir। क्लियर? एक और मैं पूछ रहा हूँ सेम टाइप का, बिल्कुल जल्दी से बताना, आंसर करना। सपोज देयर आर
20 students in a class, 20 students in a class, and there is a student named X. His position from the bottom, is 8th. Position from the bottom is 8th. What is his position from the top? 13. 13. 13. Sir, 13th. Yes, correct answer. His position from the top will be 13. सेम वही लॉजिक है. अब मैं टॉप से बोलूं या बॉटम से बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता. Sir, this was like sir 20 minus bracket sir 8 minus 1. Yeah. So how will you find it? This concept 20 minus 8 plus 1. 20 minus 8 हो गया 12, 12 plus 1 हो गया 13. तो क्या रैंक आई आपकी? 13th from the top हो गई. मतलब X जो भी स्टूडेंट था. पीछे से 8th Sir, और टॉप से sir, 13. Yeah. sir, you wrote 20 minus 8 plus 1, sir, but first we will plus here, na? Sir, because this Yes, is sir. broad First we will mass. plus. अच्छा तो किसको Yes, प्लस sir. Sir, करेंगे? bod mass. तो Sir, किसको this would be like sir 20 minus bracket 8 minus 1. नहीं तो No, ये मैंने 21 minus 8. ये मैंने गलत कर दिया बेटा. ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पर ये गलत लिखा हुआ है. No, sir. सर ये सही है. सही है? सर ये गलत- लेकिन पहले Sir, तो it is एडिशन correct. होना चाहिए. तो बेटा ये मतलब गलत लिखा हुआ है ये मैंने या सही लिखा हुआ है? सर सर लिखा बोर्ड सही है. मास के हिसाब से गलत है, वैसे सही है. सर बोर्ड मास के हिसाब से गलत है. Yes, sir, broad mass के हिसाब से गलत. 7th क्लास Sir, it should be- और वो भी सी Sir, सेक्शन. it should be 20 minus. ऐसा लग रहा है कि Sir. मैं मतलब अभी अपने घर की जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की जो विंडो है वहां से कूद जाऊं मैं. ऐसा तुम लोगों की बातें सुन के ऐसा मन कर रहा है मेरा. सर 21 minus 8 should be. 7th सर अभी मैंने अभी नहीं कहा सर. Sir, अभी 21 minus 8. अब इतना भी भरोसा नहीं है अपने टीचर के ऊपर कि मैंने सही लिखा होगा या गलत. सर हमें है. सर आपने बिल्कुल सही करा है. Sir, the answer is right. मैं बोल रहा हूँ ये बात कि तुम लोगों की बात है 7th क्लास के सी सेक्शन के बच्चे बोल रहे हैं ये बात कि ये हो सकता है गलत हो. बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग गलत है ये बिल्कुल सही लिखा है जो मैंने लिखा है. आपको मालूम है सर लेकिन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग Yes, गलत है. sir. भाई साहब सब कुछ सही है कुछ भी गलत No, नहीं है. sir, it is correct. It is absolutely Sir, correct. it should be 21 minus 8. अभी But minus 8 is not plus 8. So plus 20 plus 1. अभी भी Sir has Yes, written sir. correct. सुनो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चाहे बोर्ड मार्क्स पे बोलो चाहे कैसे बोलो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है देखिए. But according to board mass, first we should do addition. हाँ एडिशन ही करूंगा. Yes sir. कौन कह रहा है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे? मैं भी एडिशन ही करूंगा बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग. देखो एडिशन, लेकिन तुम लोगों को इतना नहीं मालूम है कि एडिशन हमेशा पहले पॉजिटिव नंबर्स में किया जाता है. नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को ऐड नहीं करते हैं. इसको यहाँ पर ऐड करके इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस 20 minus 9 ऐसे लिखोगे क्या इसको? ये एब्सोल्युटली Sir, we are saying 21 minus 8. हाँ इसको क्या लिखोगे? Yes sir. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर यूजिंग बोर्ड मास, चाहे यहाँ पे बोर्ड मास यूज करना ही, हर जगह बोर्ड मास यूज होता है. तो 20 and 1 को ऐड किया जाएगा पहले. क्यों किया जाएगा? बिकॉज दीज आर पॉजिटिव Yes sir. That is what we are saying. चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने Sir, गलत. but you have subtracted 8 from 20 first and then added But 1. sir, the answer Sir, I have is also done right. sir 20 minus 8 plus 1. उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा बिल्कुल सही है. मैं -8 को पहले लिख दूं या बाद में लिख दूं, करोगे तो तुम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड पहले. डजंट मैटर, वो Yes, बिल्कुल सही लिखा है. ठीक है. But पहले तो आपने माइनस कर दिया ना. अरे बेटा कुछ Yes, sir, पहले तो आपने minus करा. इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. पॉजिटिव और नेगेटिव कुल मिलाकर के बात ये है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में हमेशा डिफरेंस निकाला जाता है. और नेगेटिव और सॉरी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो उनमें हमेशा एडिशन होता है. आप चाहे पहले कुछ भी करिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay sir. तो नॉट. अगर आप चाहे माइनस करना चाहे माइनस करिए पहले, या प्लस करना चाहे प्लस करिए. जो बोर्ड मार्क्स में जो, लेट मी टेल यू, आप लोगों को आज तक बोर्ड मार्क्स का मीनिंग समझ में नहीं आया. देखिए ध्यान से, एडिशन जो एडिशन है यहाँ पर, ये एडिशन का मीनिंग ये है, आप पहले सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे. इसका मतलब क्या होता है? दो चीजें होती हैं इसमें एडिशन में, दो काम होते हैं. क्या काम होते हैं एडिशन में? या तो यू
फर्स्ट यू ऐड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया जाता है और इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड किया जाता है। सारे नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो भी आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर वहां पर मोर देन वन नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनको भी ऐड किया जाता है। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द डिफरेंसेस। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। जो बचे उसमें उनका डिफरेंस निकालना होता है सब्ट्रैक्शन में। आई बात समझ में? तो Yes, आप sir. चाहे ऐसे करिए या पहले इसको 21 माइनस 8 करिए, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, Okay, sir. सही है, वो भी सही है। sir. ओके सर। चलो कोई बात नहीं, टॉपिक Okay, हट गया sir. यहाँ से। वी विल कंटिन्यू द टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। रैंकिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Thank